I'm Charu. Okay, rank 76 this year's CSC 2021. So about myself, I have been born and brought up in Delhi. ठीक है, पूरी पढ़ाई I hope Hindi and English mix is okay with everyone. ठीक है, because there will be other viewers also, so मैं चाहती हूँ कि mix रहे. काफ़ी लोग दूर area से होंगे, they might not be comfortable in English only. ठीक है, so rank 76. I've been born and brought up in Delhi. I had done my graduation in Bachelor's of Management Studies from Delhi University, Shahid Sukhdev College of Business Studies. Then I had started my preparation from the third year of college. Okay, फिर first attempt में I was thankfully selected and got Railway Protection Force service. After that, currently I am in Indian Audit and Account Services, posted as Deputy Accountant General in Dehradun. And this was my 5th attempt in which I got 76 rank. Earlier it was 276, from which I got Indian Audit and Account Services. Okay? So this is a brief about me. So for this attempt, I was in Dehradun. I was preparing alongside my work, office work. Okay? So if anyone is working and want to ask questions related to this, that how did I manage going to office and work, preparing alongside, you can ask that question. Then academic journey, as I said, I was bachelor's in management studies. मैंने college से preparation थोड़ी start कर दी थी, so that gave me an earlier push. The inspiration behind that was my mom is in government services, and some background, some brief I got about civil services from her, some inspiration from her, and I felt that this is a good career option for me. I wanted to see myself there, and I wanted to give it a try. So first attempt, I gave it, giving with that thought in mind. And thankfully, I got selected. That gave me another push that improve my rank further. Then I won't take much time. I would rather that you ask questions from me. So I'll just summarize my preparation, prelims, mains, etc. ठीक है, उसके बाद whatever questions you have in mind, zero से भी negative से भी start कर सकते हो, कुछ भी questions हो, you can just ask me freely. ठीक है, so UPSC journey so far, actually because this was my 5th attempt, so it had been a very long journey. 2016 से लेके अब 2021 तक. Earlier it was with a lot of enthusiasm with the first attempt. बहुत पढ़ने में मज़ा आता था. Everything was new. So I enjoyed it a lot, and I think that was one of the reasons why I was able to clear it, my first attempt itself, because I enjoyed reading those things a lot. बहुत मज़ा आता था पढ़ने में. फिर I think over the time एक sense of fatigue भी develop होने लगा. I think reading the same thing again and again, फिर थोड़ा सा होता है कि same चीज़ पढ़े जा रहे हैं, कुछ नया नहीं आ रहा है, and वो भी आने लगा था. And I think that is one of the reasons why my second attempt didn't go that well. Third attempt, thankfully, I got selected again. But I was feeling it within myself that I was having, मुझे पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा था. And I think that was being reflected in what I was writing also. बहुत rote learning वाले answers हो रहे थे. कुछ interesting, I wasn't able to think something interesting. ऐसे बहुत rote हो रहे थे, मतलब mechanical ऐसे हो रहे थे, वो introduction, body, conclusion type वाले. So I was thinking कि मैं कुछ दिमाग apply नहीं कर रही हूँ. जैसे मेरे जैसे लोग यहाँ पे आके कुछ format दे के बन गए, and I was just applying it blindly without having that uniqueness in those answers. So I think then in between I took a break. एक साल मैंने नहीं दिया था. उसके बाद break लेके फिर मैंने दिया था. वो अपने आप को थोड़ा सा rejuvenate करने के लिए. I didn't want to give, just blindly दिए जा रहे हैं attempts without thinking anything. So that year I took a break for myself. My training was also going on. उसमें भी टाइम नहीं मिल रहा था, and I just wanted to take a break. कि वही बुक्स बार बार पढ़े जा रहे हो, नहीं, this is not going to give me any result. I wanted to add what my own uniqueness to it, what I am in my answers. And I think that worked very well for me.
that break worked very well for me. I was in Dehradun, I wasn't in Delhi. I think that also helped me because I was a little away from all the, बाहर जाते हो थोड़ा सा तो stress आ जाता है I think. तो I was away from all this. मैं दूर थी, I was studying at my own pace, studying what I liked, studying at that moment. मज़े में पढ़ रही थी, खुशी खुशी पढ़ रही थी, अपने हिसाब से पढ़ रही थी, rather than what others were telling me constantly कि नहीं ये पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो. And I was not just studying, मैं काम भी कर रही थी साथ में. It was a very balanced routine. So काम के साथ साथ मैंने डिसाइड कर लिया था कि मॉर्निंग आई यूज़ टू वेक अप, एक्सरसाइज करती थी, फिर डांस करती थी. आई लाइक डांसिंग अ लॉट, तो बीच में डांस करती थी. देन आई यूज़ टू स्टडी, देन आई गो टू ऑफिस, देन आई अगेन बीच में थोड़ा ब्रेक लेके आई अगेन स्टार्टेड स्टडिंग. बट इट वॉज एट माई ओन पेस, अकॉर्डिंग टू वॉट आई फेल्ट कम्फर्टेबल विद, रादर दैन कि कोई दूसरा मुझे बताए कि तुम्हें ऐसे नहीं इतने घंटे पढ़ना चाहिए, उतने घंटे पढ़ना चाहिए. आई डिड वॉट आई फेल्ट कम्फर्टेबल विद. एंड आई थिंक अगर मतलब बिकॉज आई वॉन्टेड कि जो रिज़ल्ट आए वो मेरा रिज़ल्ट आए, ऐसा ना हो कि किसी और के कहने से वो चीज़ आए. आई वॉन्टेड टू बी सैटिस्फाइड विद माई सेल्फ कि मेरी मेहनत से जो मुझे सही लग रहा था मैंने उस हिसाब से करा. नहीं भी होता, एटलीस्ट आई डिड, इट वॉज ऑन मी कि मैंने अपनी तरफ से पूरा किया. मुझे वो रिग्रेट नहीं करना चाहती थी मैं. पहले का मुझे रिग्रेट लगता है कि आई शुड हैव मोर बैलेंस्ड रूटीन. मैंने अपनी स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ कर दी थी पहले, कम घंटे सोती थी. लोग बोलते थे 5-6 घंटे ही सोना काफ़ी है, वो मैंने नहीं करा. नहीं, मैं पूरा 8 घंटे सोऊंगी, कोई बात नहीं. सो मैंने अपने हिसाब से करा कि मुझे जो सही लग रहा है. पहले मैंने एक्सरसाइज करना, घर से रूम से बाहर निकलना छोड़ दिया था कि ज़्यादा घंटे पढ़ूंगी तो उसका रिजल्ट ज़्यादा आएगा. नो डाउट इफ़ मोर आवर्स यू आर पुटिंग इन मोर, उसका रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलता है. बट आई थिंक यू शुड हैव मोर बैलेंस थिंग. 6-7 घंटे में इफ़ यू आर गेटिंग द सेम आउटपुट, नो तो 8-10 घंटे लगाने की ज़रूरत नहीं है. आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, दैट बैलेंस रूटीन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. टेक अ ब्रेक अवे, थिंक अबाउट इट कि आप जो डायरेक्शन में जा रहे हो उसका फ़ायदा आ रहा है नहीं आ रहा है. जो आप पढ़ रहे हो उसका कुछ रिजल्ट आएगा नहीं आएगा. सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करने से आई थिंक, बिकॉज एक अटैम्प्ट चलो आप 1 साल निकालोगे, पर 2-3 साल के बाद वो मेंटली रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है आप में. सो आई थिंक इफ़ अगर वो बैलेंस बना के रखोगे, अपनी हॉबीज़ के लिए भी थोड़ा टाइम निकाल के रखोगे, यू विल फील मोर सेटिस्फाइड एंड यू कैन गो ऑन फॉर अ लॉन्गर टाइम. वो स्टैमिना काम करने का बना रहता है. you can go for 10 hours short term के लिए, but for longer term I think that thing is more important, that you have other things also. Walk के लिए जा सकते हो, बात कर सकते हो, that is important. Of course आपके specific doubts course के related भी I was given a brief to talk about scores also. My optional is political science and international relations. My score was good in GS, पूरा essay, ethics और GS वाले subjects में. Political science was average and interview was I think below average. But GS, essay, ethics was good. उसी की वजह से आए हैं and it was a very good score. फिर उसके बाद optional का my earlier optional was geography. ठीक है. स्टार्टिंग में मैंने बिकॉज इट वॉज वेरी ईजिली अवेलेबल, मटीरियल बहुत आसानी से अवेलेबल था, कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे थे, टेस्ट सीरीज वॉज ईजिली अवेलेबल, सो आई थॉट जोग्राफी इज़ गुड. अब शुरुआत में 1 year आई एन्जॉयड इट अ लॉट, उसमें बहुत मज़ा आता था चीज़ें पढ़ने में. बट देन आई रियलाइज, मतलब नंबर पहले अटेम्प्ट में बहुत अच्छा आ गए थे जोग्राफी में, बट उसके बाद कम होता रहा स्कोर. उसके फिर इस बार मैंने छोड़ दिया था, इस बार मैंने पॉलिटिकल साइंस ले लिया, बिकॉज एक तो मुझे वही चीज़ बार बार नहीं पढ़नी थी. एंड आई वाज श्योर अगर मैं वो फिर से बुक उठाऊंगी, वो जियोमॉर्फोलॉजी वाली जो भी फिजिकल जोग्राफी वाली, आई वोंट बी एबल टू रीड इट. और अगर मैं जोग्राफी के साथ करती तो नहीं होता मेरा, फिर से नहीं होता, बिकॉज आई वॉजेंट इन्जॉइंग व्हाट आई वाज रीडिंग. फिर से मैं नहीं पढ़ पाती. एंड पॉलिटिकल साइंस वॉज अ वेरी रिफ्रेशिंग ब्रेक फ्रॉम मी, और वो पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आया था. इवन राइट नाउ इफ़ यू गिव मी अगेन मैं फिर से महीने उसको पढ़ सकती हूँ. आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इन ऑप्शनल, दैट यू आर एबल टू गिव इन टाइम. वो सेंस ऑफ लिथार्जी वो नहीं होना चाहिए. अगर वो आपको लग रहा है पढ़ने में,
तो आई थिंक यू टेक अ ब्रेक बैक, फिर उसको थोड़ा सोच लो कि डू यू वांट टू कंटिन्यू. आई थिंक ज्योग्राफी वाले काफ़ी लोग को ये डाउट होता है कि शुड वी कंटिन्यू विद ज्योग्राफी और नॉट, शुड वी चेंज इट टू सम अदर एंथ्रो या पॉलिटिकल साइंस में. अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है देन यू पढ़ उसको करते रहो, बट अगर नहीं लग रहा है थोड़ा सा या आपके मार्क्स कम हो रहे हैं देन यू टेक अ स्टेप बैक, थोड़ा रिफ्लेक्ट करो, सोचो उसको कि डू यू वांट टू कंटिन्यू विद इट और नॉट. कहीं और आपको एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू स्कोर मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, चाहे वो ज्योग्राफी से मिले चाहे कहीं और से मिले. ठीक है, तो सोच लो कि इसमें आ रहा है नहीं आ रहे मार्क्स. अगर नहीं आ रहे हैं तो जस्ट टेक ऑन समथिंग एल्स. इट्स डिफिकल्ट ऑल्सो. पॉलिटिकल साइंस मैंने तब लिया जब आई वॉज मैनेजिंग ऑफिस वर्क ऑल्सो, बट आई न्यू आई कुडंट स्टडी विद ज्योग्राफी. चाहे ये सोच के मैं ले लेती कि यार ज्योग्राफी में इतना टाइम दिया है, मूविंग ऑन टू न्यू ऑप्शनल इज़ वेरी डिफिकल्ट, but I think I would rather take a new optional and not be able to clear it rather than committing the same mistake again. Geography से तो बिल्कुल भी नहीं होता, and because I wanted to improve my rank, already I was in service, तो मुझे तो और अच्छी लानी थी और मुझे पता था geography के साथ नहीं आनी है मेरी. So I took that step. नहीं होता but at least I gave it my best shot. I'll give it my best shot. तो ये सोच के मैंने I took the new optional. और देन आई थिंक वील गो स्टेजेस वाइज. थोड़ा प्रीलिम्स से स्टार्ट करेंगे. प्रीलिम्स आई हैड बीन एबल टू क्लियर ऑल द टाइम्स दैट आई हैड गिवन. इन द फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने टाइम अराउंड आई थिंक इन द फर्स्ट अटैम्प्ट 2 महीने का टाइम इज़ सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. अगर आपको लगता है प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा वीक है देन यू गिव इट लिटिल मोर टाइम. उसके साथ आई थिंक बुक्स आर फेयरली द सेम जो हर कोई रिकमेंड करता है. आप देख लो, प्रीवियस ईयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड आई थिंक अब लास्ट ईयर से पैटर्न भी थोड़ा चेंज हो रहा है. द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऑप्शंस में थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ रहा है. सो इन दैट केस यू नो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जितना क्लियर आपके कॉन्सेप्ट्स रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से, खासकर पॉलिटी में जैसे ऑप्शंस आर वेरी कन्फ्यूजिंग, आपको खुद नहीं पता चलेगा ऑप्शन से, बट दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग. उसमें आप एक बुक सपोज फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व थ्रू दिस. बट उसमें ये है यू रिवाइज इट मोर ऑफ्टन. उसको रिवाइज करते रहो, जितना बार रिवाइज करोगे उतना क्लैरिटी बढ़ेगी, उतना यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट बेटर और ऑप्शंस में आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे. सो आई थिंक यू सी द सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटी है, साइंस एंड टेक है, इन्वायरमेंट है, इको के क्वेश्चंस हैं. सो यू सी पॉलिटी इज़ यू नो ईजिली यू कैन हैव एटलीस्ट दैट स्कोर. इको वाले भी आसान आते हैं कभी कभी, इको वाले भी आप कर सकते हो जो एनसीईआरटी के आते हैं. एनसीईआरटी आई थिंक 11th वाली है, उसमें से कई बार काफ़ी आ जाते हैं, बट वो भी कॉन्सेप्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी. उसके डिमांड मल्टीप्लायर, डिमांड सप्लाई से कर्व जो चेंज हो जाता है, इन्फ्लेशन से, सप्लाई से. आई थिंक दैट कैन बी सॉल्व थ्रू दोज बुक्स. इन्वायरमेंट के भी आते हैं. फॉर करंट अफेयर्स आई यूज टू रेफर टू विजन वाला PT 365. तो उसमें आई थिंक करंट अफेयर्स भी कवर हो जाता है और साथ साथ में वो कभी बॉक्सेस में स्टैटिक वाला पोर्शन भी देते हैं, उसके कॉन्सेप्ट डेफिनेशन भी देते हैं. सो आई थिंक वो भी काफ़ी पोर्शन जो होता था उससे भी कवर हो जाता था. सो एक कोचिंग का करो बट उसको अच्छे से कर लो. 15 कोचिंग का करंट अफेयर्स का आई डोंट थिंक रिपीटिशन ही होती है फिर हर उसमें. करंट अफेयर्स तो चेंज होंगे नहीं. एक कोचिंग का करो बट उसको अच्छे से कर लो कि वो याद रहे. एंड रिजल्ट ये है कि एग्जाम में आप 2 घंटे बैठे हुए आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए. उस वक्त वो कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि इसका आंसर अरे ये था या ये था, हम भूल गए इसका आंसर. तो आई थिंक द लिमिट योर सोर्सेज उतना हो जाना चाहिए. बेसिक बुक्स कवर हो जानी चाहिए और एक करंट अफेयर्स कोचिंग वाला ठीक है. एंड रिवाइज इट, फिर उसके बाद उसको रिवाइज करते रहो. जितनी बार रिवाइज करोगे उतने अच्छे से फिर याद रहेगा और कन्फ्यूजन कम से कम होगी ऑप्शंस के बीच में और अंडरस्टैंडिंग में कि वो कहना क्या चाहते हैं क्वेश्चंस में. मॉक टेस्ट मैं प्रीलिम्स के लिए मैंने मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं करा था. मॉक टेस्ट इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, अगर आपको लगता है कि कर लेना चाहिए. मैंने एक्चुअली फर्स्ट अटैम्प्ट में भी नहीं करा था, एक टाइम भी कम था मेरे पास. बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आई हैड ऑलवेज सीन. अगर मुझे अभी भी कोई डाउट होगा, अभी भी इफ़ यू वांट मी टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स अगेन, फर्स्ट थिंग आई विल गो बैक इज़ टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. फिर उसमें से मैं देखती थी कि इन्होंने क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे कहाँ से हुए हैं.
पॉलिटिक्स से पूछ रहे हैं, इन्वायरमेंट से पूछ रहे हैं, इको से पूछ रहे हैं, मैं उसको मार्क कर देती थी। फिर जो बुक्स में रेफ़र करती थी मैं उसमें देखती थी क्या ये क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। जैसे एंशियंट हिस्ट्री के कई बार क्वेश्चन ही नहीं पता चलते कि वो कहाँ से पूछ रहे हैं। सो आई यूज़ टू ठीक है कि मेरे पास दो तीन सोर्स है, अगर उसमें से हो जाते हैं तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, बिकॉज द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो विल बी वेरी हाई उसको पढ़ने का। फिर कोई ढूंढोगे कि एंशियंट हिस्ट्री के कौन से सोर्स हो सकते हैं। सो आई थिंक बट पॉलिटी का आई विल स्टडी वो, जैसे स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का आई यूज़ टू रेफर, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आई यूज़ टू रेफर। सो दीज आर द मेजर, उसमें मैं कोई कमी नहीं छोड़ती थी। फिर अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आ गया देन इट शुडंट गो बैड, उसमें से फिर दैट इज़ वेरी बैड ऑन माई पार्ट। अगर उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आया और आई एम नॉट एबल टू अटेम्प्ट इट, then it shows weakness in my preparation. So at least those basic books I used to refer to very well. Current affairs वाला portion में याद बिल्कुल डिट्टो टिप्स पे याद रखना है तो मुश्किल होता है कि एक एक वर्ड आपको याद हो जाए, बट एटलीस्ट 3-4 बार रिविजन्स करने से ऊपर से तो याद रह ही जाती हैं चीज़ें। ठीक है, इतना आई थिंक 2 महीने के हिसाब से इतना ठीक रहता है। एंड यू डोंट हैव टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स आई थिंक 105 110 इतने तक ठीक है लाना। यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस के सारे करके लाने हैं, एशियन हिस्ट्री बिल्कुल टिप तक पढ़ के जानी है। यू अटेम्प्ट जो आपको कंफर्टेबल हो, आसान क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो, कम से कम आसान क्वेश्चंस में गलती नहीं होनी चाहिए कि अब वही नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो, बिकॉज वो सब कर लेते हैं फिर अटेम्प्ट, उसमें गलती हो गई देन इट्स अ लॉस्ट कॉज देन। तो बस आई थिंक वन ऑफ माई एडवाइस फॉर प्रीलिम्स इज़ दैट ओनली, वन ऑफ द मेन एडवाइस कि फाइंड आउट वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट जो उसमें है। पॉलिटी वाला जैसे मुझे लगता है, इको वाला लगता है, और इन्वायरमेंट वाला मुझे ईजीएस्ट पार्ट्स लगते हैं। सो एटलीस्ट डू दैट क्वेश्चंस, उसमें कमी मत छोड़ना प्रिपरेशंस में। बाकी एनीवे सम क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम फ्रॉम XYZ प्लेस, वो अटेम्प्ट करना सभी के लिए मुश्किल होते हैं, सिर्फ आपके लिए नहीं होंगे, बट आसान क्वेश्चन सब अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसमें अगर गलती होगी देन इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। सो एटलीस्ट फाइंड आउट दैट, वो प्रीवियस ईयर से उसको अच्छे से स्टडी करना, प्रीवियस ईयर से काफ़ी पॉइंटर्स मिल जाते हैं और उसके बेसिस पे स्टार्ट कर लेना। एंड आई थिंक 2 months इज़ इनफ, 2 months के बेसिस पे अगर इफ़ यू फील कंफर्टेबल मॉक के साथ तो मॉक भी दे देना, उससे पता चलेगा थोड़ा कि स्टार्टिंग में एटलीस्ट आई थिंक फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकेंड अटैम्प्ट से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाउ मच बेनिफिट यू आर गेटिंग आउट ऑफ योर मॉक ऑल्सो। ठीक है, CSAT के लिए फिर CSAT के लिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती थी। आई थिंक इस वाले अटैम्प्ट में तो मैं बिल्कुल भी पढ़ के, जो ब्रेक वाला टाइम था सिर्फ वो मैंने पिछले साल का ही पेपर देखा था, उसमें ऊपर से एक बार ही सॉल्व कर दिया था उसमें, हाँ मुझसे सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस तो मैंने कर दिया था। बट अगर CSAT किसी को लगता है कि वीकनेस है, हो सकता है कि CSAT के वजह से क्लियर ना हो रहा हो, कई बार मैंने लोगों का सुना है। सो आई थिंक उसके लिए भी फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे याद है 2-3 दिन मैंने करा था, बट आई थिंक थोड़ा बेसिक, अगर आपको इंग्लिश उसमें भी 66 ऐसे कुछ लाने हैं तो यू जस्ट सी व्हाट इज़ योर गुड पॉइंट। अगर आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग लगती है तो इंग्लिश वाले अटेम्प्ट कर लेना पहले सारे, फिर उसके बाद मैथ्स वाले करना। अगर आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग लगती है तो मैथ्स वाले आसान करना। उसमें तो बस ये है कि आप सबसे आसान क्वेश्चन ढूंढो और बस किसी तरह वो कर लो। आई थिंक यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, फिर से उसमें क्वेश्चन ज़्यादा, उसमें बट जो आसान चीज़ है उसको कर लो एंड आई थिंक इट विल बी क्लियर। प्रैक्टिस प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से, जो आपको लग रहा है अगर इंग्लिश इज़ योर स्ट्रेंथ तो इंग्लिश को अच्छा कर लो। मैथ्स बेसिक तो आई थिंक सभी को थोड़ी बहुत तो आती है, इतना सॉल्व करने वाली तो आती है। तो आई थिंक CSAT में ज़्यादा फोकस डालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समहाउ गेट द कट ऑफ क्लियर उसके बाद। बट मेन फोकस शुड बी ऑन GS वाला पोर्शन, क्योंकि दैट इज़ द मेन डिसाइडिंग पॉइंट। उसके बाद तो मेन से नहीं लिख पाओगे। अगर GS हो जाएगा, GS नहीं होगा तो अगेन यू विल कम बैक टू होल ज़ीरो। तो GS वाले पोर्शन में यू शुड गिव मैक्सिमम टाइम एंड आसान क्वेश्चन में गलती करने का स्कोप कम से कम छोड़ना है कि उसमें गलती ना हो। थोड़े बहुत अगर क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आता है तो वो सभी के लिए डिफ़िकल्ट आएंगे, एग्ज़ाम सभी के लिए डिफ़िकल्ट आएगा। जैसे मुझे याद है 2021 में कोई स्पोर्ट्स, मतलब कोई लोगो वोगो के भी क्वेश्चन आ रहे थे, लॉरियस स्पोर्ट्स पर्सन का आया था कोई, रॉजर फेडरर वाला। तो आई थिंक वो तो फिर किसी कोई स्पोर्ट्स पर्सन होगा, वो तो किसी PT 365 में भी नहीं मिलेगा उसका जवाब। तो बट ये है कि उसके साथ साथ आपको पॉलिटी के लक्ष्मीकांत के क्वेश्चन डिट्टो मिलेंगे, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस मिलेंगे, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन थे उसमें। तो आई थिंक वो क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। फिर उस क्वेश्चन में तो फिर वो छूट जाएंगे तो फिर आपका पूरा ही स्कोर नीचे चला जाएगा।
ठीक है, फिर उसके बाद मेंस पे आते हैं। मेंस में GS1 से स्टार्ट करते हैं। GS1 में हिस्ट्री, सोसाइटी और आपका रहता है ज्योग्राफी वाला पोर्शन। सो ज्योग्राफी वाला बिकॉज मेरा अर्लियर ऑप्शनल का था, उसके नोट्स बने हुए थे, सो दिस टाइम मैंने ज़्यादा उसको रेफ़र नहीं करा, ऊपर ऊपर से मैंने नोट्स पढ़ लिए थे और क्वेश्चन ज़्यादातर उसमें से सॉल्व हो पा रहे थे। सो आई थॉट कि इतना ही लिमिटेड रखना है, ज़्यादा बल्कि उसको रिवाइज़ करते रहो तो ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ज्योग्राफी में अगेन डायग्राम्स आप बना सकते हो, डायग्राम्स आर गुड इनफ इन ज्योग्राफी, उससे थोड़ा सा अच्छा आंसर्स बनने को आता है। और बाकी बिकॉज फॉर मी इट वॉज देयर इन माई ऑप्शनल, सो बट इन योर केस आई थिंक जिसका ऑप्शनल नहीं है, आई थिंक NCERTs आर गुड इनफ। NCERTs इज़ द बेसिक थिंग इन ज्योग्राफी। और उसके बाद आई डोंट रेफर टू मच सोर्सेज। एक कोई बुक GC लियोंग बुक आती है, आई हैड दैट बुक बट मैंने पढ़ी नहीं थी बिकॉज आई वॉज स्टडिंग फॉर ऑप्शनल वाला। सो बट आई थिंक वन एडवाइस आई कैन गिव एन आंसर राइटिंग इज डायग्राम। ज्योग्राफी में डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, दैट इज़ अ गुड वैल्यू एडिशन। बाकी हिस्ट्री में आई थिंक हिस्ट्री में थोड़ा सा कम, एंशिएंट हिस्ट्री वाले को थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देना। एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत डाइसी होते हैं, बोथ इन प्रीलिम्स both in mains, so if you give less time, if you have more time then you can give it your दे सकते हो। अभी जैसे आप लोगों के पास टाइम है, यू आर गिविंग द 2023 अटेम्प्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यू हैव टाइम देन यू कैन गिव इट। बट जैसे अगर कम टाइम होगा, इट इज़ अगेन कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज़्यादा है उसका कॉस्ट, मतलब आप टाइम बहुत ज़्यादा लगा दोगे एंड इट्स अ नेवर एंडिंग थिंग। एंशिएंट हिस्ट्री कभी ख़त्म ही नहीं होगी, जितना पढ़ोगे उतनी एड ऑन चीज़ें होती रहेंगी। सो बेसिक मिनिमम पढ़ लो। वो आर्ट एंड कल्चर वाली बुक है जैसे NCERT की है, और NCERTs है अगेन, वो भी मैं पढ़ती थी। एटलीस्ट कुछ हो आपके पास उसमें राइट लिखने के लिए, ऐसा ना हो कि टोटली ब्लैंक हो जाओ कि इसके लिए तो कुछ लिखने के लिए, बस बेसिक चीज़ें हो लिखने के लिए, चाहे आपका आंसर एवरेज ही जाए। इन एशियन हिस्ट्री इट्स फाइन। वर्ल्ड हिस्ट्री का अगेन मैं विजन वाला एक बुकलेट था, मैं वो पढ़ती थी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। आई थिंक दैट वाज सफिशिएंट, उसके आगे मैं नहीं पढ़ती थी। सो आई यूज़ टू कीप 1-2 सोर्सेज, बस उसमें मुझे ये देखती थी मैं कि इसमें से प्रीवियस ईयर वाले एटलीस्ट क्वेश्चंस कवर हो जाने चाहिए, मतलब बेसिक वो चीज़ कवर हो जानी चाहिए। अगर वो चीज़ कवर नहीं हो पा रही होती, देन ओनली आई यूज़ टू एक्सपैंड माई सोर्सेज। सोसाइटी के अगेन विजन की बुकलेट थी, मैं सिर्फ वो बुकलेट पढ़ती थी। और विजन के अगेन करंट अफेयर्स वाले मेन 365 होते थे, तो जो सीधा जैसे अगर स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आ गया सेक्युलरिज्म, थोड़ा गूगल भी कर देती थी, आई यूज़ टू टेक गूगल ऑल्सो। सेक्युलरिज्म, रीजनलिज्म, जैसे ये जो टॉपिक्स हैं उसके, पॉपुलेशन वाले, फीचर्स ऑफ सोसाइटी ऐसे हैं, तो आई थिंक वो उस बुकलेट से पढ़ लेती, गूगल से कई बार कर लेती थी, और करंट अफेयर से एग्जाम्पल्स ऐड कर लेती थी उसके बस। एंड आई थिंक उस सोसाइटी वाले क्वेश्चंस आर ईजी, सोसाइटी वाले ऑलमोस्ट मेनी टाइम्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, वुमेंस मूवमेंट वाले। सो आई थिंक दैट यू कैन प्रिपेयर इन एडवांस, उसके ऊपर आप पहले से प्रिपरेशन करके जा सकते हो। एंड आई थिंक दैट ओनली मटीरियल आप उसको क्वेश्चन के हिसाब से फिट करने की कोशिश करो। जैसे क्वेश्चन जो पूछ रहा है, ऑफ कोर्स यू कैन वर्बेटम, पर उसके मॉडिफाइडली यू हैव दैट बेसिक कंटेंट, उसमें आप फिट करके उसको लगा सकते हो। ज्योग्राफी वाला भी, ज्योग्राफी मुझे आई थिंक ऑप्शनल ने हेल्प करी थी, GS में हेल्प करी है। हिस्ट्री वाला थोड़ा डाइसी रहता है, सोसाइटी वाला GS1 में पोर्शन ईजी रहता है, दैट इज़ वेरी गुड, यू कैन वेरी वेल प्रिपेयर एंड रन। चाहे गूगल ही कर लो, अगर किसी कोचिंग का नहीं करना, गूगल से ही आप टॉपिक देख लो, सेक्युलरिज्म टाइप कर लो, और उसके मेन फीचर्स क्या है, इंडिया, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड इन इंडिया, व्हाट सॉल्यूशंस यू कैन सजेस्ट, बस ये 3-4 चीज़ें। और प्लस करंट अफेयर्स का कुछ चीज़ चल रही है, सो यू कैन सिंपली ऐड ऑन दैट एग्जाम्पल। उसमें यू कैन हैव अ वेरी गुड स्कोर उन आंसर्स में, बिकॉज दे आर डिट्टो ऑलमोस्ट, उसको आप अच्छे से कर सकते हो। फिर GS2 में अगेन पॉलिटी में, बिकॉज प्रीलिम्स में मैं लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से पढ़ती थी, सो इसमें वो भी प्रीलिम्स में जो आप पढ़ रहे हो काफ़ी हद तक उसकी मदद हो जाती है उसकी, ठीक है। तो आई यूज़ टू, फिर मैं पॉलिटी में मैं सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ती थी। गवर्नेंस का अगेन वो टॉपिक वाइज जो दे रखा हो, सिटीजन चार्टर, ये सब जो टॉपिक्स दे रखे हैं उसमें,
उसके लिए किसी विजन वाली बुकलेट से या गूगल से अगेन आई यूज टू जस्ट सर्च, वो वाले भी काफ़ी बार आसान आते हैं, जैसे एसएचजी वाला है, एसएचजी वाले पे बहुत कई बार क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस सेम टॉपिक पे, व्हाट देयर आस्किंग इज़ डिफरेंट बट आई थिंक the topic remains the same, participative democracy, SHG. So I think उस portion पे भी you can prepare well in advance. उस पे भी if you can just see कि SHG का थोड़ा सा brief पढ़ लो, how had it evolved over time, उसके थोड़े examples देख लो, इंदिरा क्रांति प्रथम वाले, कुदुम्बश्री वाले, और कोई नए example, because these are example now everyone is using. So I think कोई नया example आपको देखने को आ रहा है, I think because the person who will be checking your answer sheet, these example everyone is going to see, कि कुदुम्बश्री वाले और IKP वाले तो सभी देख रहे होंगे. So when you look forward कि कोई और कोई नया example आए, वो थोड़ा सा गूगल करके देख लो कि SHG का कोई नया example है, कोई नॉर्थ इंडिया से example आया है, कोई, so it will be different, it will be different for the person who's checking your answer कि हाँ ये repetitive नहीं है, ठीक है. और थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी, अगर आपको कोई और प्रॉब्लम दिख रही है, इसमें करंट अफेयर्स वाला कैन हेल्प यू. करंट अफेयर्स में जैसे विजन वाले में भी 365 में दे गिव यू प्रॉब्लम्स ऑल्सो एंड सोल्यूशंस फॉर इट ऑल्सो एंड कंक्लूजन फॉर इट ऑल्सो, सो दैट यू कैन यूज. बट इसमें भी सी द की पॉइंट इन ऑल योर आंसर्स इज सी फ्रॉम द perspective of the person who will be checking your answer sheet. They'll be checking the answer sheet of so many people, and your answer sheet should be different from the person whose answer sheet they would have evaluated just before you. So, and that is only going to give you marks, or else your marks is going to be the same as a person before you. फिर तो ज़्यादा difference नहीं होगा. So your answer should have that little different thing than the person before you. तो उसके लिए आपके examples नहीं हो सकते हैं. आपका introduction, at least you can have a different introduction, because that's the starting point. At least उसको starting में ही लगेगा कि there's a different thing. So that उसमें I think Google, simple Google can help कि SHG के new recent SHGs which are being formed, कोई अच्छी सी कमिटी कोई बनी हो जो recently बनी हो, because earlier जो जैसे मेरे जैसे लोग हैं वो पिछला वाला source refer कर रहे होंगे. So our examples are going to be the previous ones. You guys have that कि current वाले examples ज़्यादा use कर सकते हो जो आजकल recently हो रहा है. That advantage you have over the other guys who have been preparing for longer years, because उनके answers में वो पिछले वाली चीज़ reflect होगी, पुरानी चीज़ reflect होगी. आप लोगों के answers में वो नई चीज़, अभी जो हाल फिलहाल की है, अभी जो आप इधर पढ़ रहे हो, GS की कोचिंग ले रहे हो, उधर से कुछ होगा, वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी, वो हमारे आंसर से मिसिंग होगी, एंड दैट इज़ अ वेरी डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर फॉर योर आंसर. सो उसको एटलीस्ट वो चीज़ अच्छे से नोट कर लो कि हाँ दिस इज़ अ थिंग वी आर गोइंग टू ऐड इन आवर आंसर. सो एवरी थिंग यू आर स्टडिंग हेयर ऑल्सो यू थिंक इट दिस इज़ अ पॉसिबल क्वेश्चन and these are the things we are going to write in our answer. Especially if they're teaching you examples, case studies, I suggest you note it down, थोड़ा अलग से उसको note down कर लो, and that is going to be very helpful for you. ठीक है. GS2 में और IR वाला पोर्शन अगेन बिकॉज मेरा ऑप्शनल था तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था इस पर भी. आई थॉट कि ऑप्शनल वाले के साथ, बिकॉज इट्स अल्टीमेटली टाइम, यू हैव टू मैनेज योर टाइम एंड इट्स ऑलवेज लेस. जितना भी आप पढ़ लोगे एंड ऑफ द डे यू विल थिंक कि टाइम कम ही है हमेशा. सो आई डिडेंट गिव टू मच टाइम ऑन GS2. मैंने सोचा था कि उसके साथ ही मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगी जितना हो सके. GS3 अगेन इकोनॉमी का अगेन सिलेबस में जो भी टॉपिक है, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग और मतलब ये जो भी सारे टॉपिक्स हैं, आई थिंक एटलीस्ट दैट टॉपिक वाला यू प्रिपेयर वेरी वेल. क्योंकि बाकी क्वेश्चन जो बाहर के आएंगे दैट इज़ एनी वे नॉट इन योर हैंड्स, बट एटलीस्ट जो टॉपिक स्ट्रेट अवे सिलेबस में है दैट यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड विद. अगेन सो rather than any particular source, what is important is that you cover that topic very well. चाहे आप उसे अगेन गूगल से कर लो, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, जो भी टॉपिक्स हैं, एटलीस्ट यू हैव दैट बेसिक थिंग. और जितना नए एग्जाम्पल्स हो, जितने डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो, अगेन दैट इज़ द की एजेंडा. यू हैव टू मेक योर आंसर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. उसमें कुछ अलग ऐड करना, उसको इंटरेस्टिंग बनाना है बाकियों के कंपैरेटिवली. बस यही फोकस है. चाहे आपका कहीं से भी वो आपका एजेंडा पूरा हो रहा हो, यहाँ से कहीं और से, गूगल से पूरा हो, कहीं से भी कर सकते हो आप. बट बस आपको आंसर डिफरेंट बनाना है दूसरों से जो दूसरे आंसर लिख रहे हैं. ठीक है. GS4, GS1, GS2, GS3 नॉलेज बेस्ड है, बट GS4 में थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आपको करना पड़ेगा. सो फॉर एग्जाम्पल
दो सेक्शंस जैसे हैं. फर्स्ट इज सिंपल डेफिनेशन बेस्ड, कोट बेस्ड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं. इसमें व्हाट यू कैन डू, इसमें भी थोड़ा सा यू हैव टू थिंक व्हाट इज़, मतलब थोड़ा सा आपको सोचना ही पड़ेगा इसके बारे में, और एग्जाम्पल्स थोड़ा देखने पड़ेंगे. एग्जाम्पल्स, सो फॉर एग्जाम्पल सम कोट कम्स, so you have to first, you have to keep it very simple for the person, because ethics is your simplicity shows your understanding. So अगर आप उसको आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर पा रहे हो, मतलब इसको समझ में आ गई है what it means, not just the theoretical definition. इसमें आप, I think I suggest किसी बुक के भागने, even गूगल के भागने के बजाय you just try to think and simplify it for yourself. और उसको लिख लो फिर अलग से. जैसे सिंपल अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एटीट्यूड वाले में, यू मेक योर ओन डेफिनेशन, मेक इट वेरी सिंपल, बिकॉज योर सिंप्लिसिटी विल शो कि हाँ आपको समझ में आएगा, और उसको फिर एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट कर दो जल्दी से. योर एग्जाम्पल विल फर्दर ऐड टू योर डेफिनेशन. और इसमें एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सिर्फ अगर आप थ्योरी लिखते रहोगे, आई थिंक सब्सटैंशिएशन विल नॉट बी देयर. एंड काफ़ी बार तो खुद ही उसमें लिखा होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है इलस्ट्रेट, गिव एग्जाम्पल्स. सो आई थिंक इसके लिए एग्जाम्पल केस स्टडीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो जैसे किसी और ने रेफ़र करी हो, जैसे आई वाज सीइंग अनुदीप सर्स नोट्स, उसमें काफ़ी उन्होंने एग्जाम्पल्स के बारे में लिख रखा है. सो आई थिंक सिविल सर्विसेज के एग्जाम्पल्स ले लो, जो वेल नोन सिविल सर्वेंट्स हैं उन्हीं के एग्जाम्पल्स कई बार यू कैन जस्ट रेफ़र टू. और आसपास के केस है, बस इट्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि सामने वाला कोई चेक कर रहा है. सो आई थिंक इट्स बेटर दैट एग्जाम्पल इज़ नोन टू हिम और हर ऑल्सो. किसी NGO में, बिकॉज पीपल हु स्टार्ट दीज NGO, जो वेल नोन NGO, बिकॉज दे गिव अप देयर ओन पर्सनल लाइफ फॉर अ कॉज, एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेन, यू नो, ethics में I think that's one of the great value, that you give up your personal life for someone else. So you can use their example. बेजवाड़ा विल्सन सर, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ छोड़ के दूसरों के लिए काम करते हैं. I think those examples you can use. So examples are very important in ethics, not just your theoretical thing. Theoretical में आप एक पैरा में अगर उसको लिखना चाहे हो तो लिख सकते हो, थोड़ा सा अपनी एक्सप्लेनेशन के हिसाब से, बट देन यू स्ट्रेट अवे गिव एग्जाम्पल. और डिफरेंट फील्ड से रहे, स्पोर्ट्स पर्सन के दे सकते हो, बिजनेस रिलेटेड दे सकते हो, फिलान्थ्रोफी से दे सकते हो, कहीं से भी दे सकते हो. एंड इसमें भी अगर आप रूटीन एग्जाम्पल्स के बजाय कोई अच्छा एग्जाम्पल यूज़ करो जो कि लोगों को नहीं पता है. जैसे अभी यूक्रेन वॉर हुआ था, तो अगर कोई एग्जाम्पल निकल के आता है, समवन वेंट आउट ऑफ द वे टू हेल्प अदर्स, I think that is an example you can use in many things. Compassion related कोई आएगा, empathy related आएगा, and that you can use it, and that people can identify because it's recent also, it was on a huge scale, and then a person is going out and helping others. So that is something you can always use in your ethics answers. Case study वाला, now ethics में मेरे अच्छे GS4 में I scored good marks, thankfully. Case studies wala, I think one of the thing that was helping me was my office experience this time, because these were the things that I was actually facing in my real life. So I just, whatever answers I wrote was with the view that I was that person. I was that person and I had to actually solve. So I was actually envisioning myself as the administrator, and suppose a person has come to me with this issue, what will I do? So you, and now I know the practical constraints of working also, that you can't just go out of your way whatever you want to do. You have to be rule bound. Whatever you have to do, it's within the sphere of law. You have to manage different things. Many different factors are there. So you have to be practical, but then you also have to find a solution. You have to be very assertive in your solution also. And I think that should be there in your answers. तो कोई भी case study आती है, just I'll just propose that you just put yourself in that person's position. बहुत ज़्यादा idealistic नहीं होना, but yes, you should always be positive, have a problem solving approach, think of yourself as a leader, that you are the leader and you have to solve that issue. और पेसिमिस्ट नहीं होना ज़्यादा कि अब ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं सकती. ठीक है, हर प्रॉब्लम, एवरी प्रॉब्लम इज सॉल्वेबल एंड एवरी प्रॉब्लम इज गोइंग टू अराइज. यू नो, मोर दैन द प्रिपरेशन, द नेक्स्ट फेज ऑफ दैट जर्नी इज इवन मोर हार्ड एंड डिफ़िकल्ट. आगे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आएंगी. आगे काम, जब आप एक्चुअली में काम करोगे ग्राउंड में,
that's going to be a real test of your character and your knowledge. Because whatever you're learning, then it has to be applied on field also. And you have to use that knowledge productively. अभी तो आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो, आगे आपको SHG एक्चुअली में चलाने हैं, काम करवाना है उनसे. और आगे ये सब जो प्रोग्राम से पढ़ रहे हो उसमें बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं ग्राउंड में, बिकॉज right now you're just writing these answers, but आगे जाके एक human element involve हो जाएगा. Everyone wants different things, and how do you, and you know, resources are not, they are limited only. Then you have to, and you are there, and you have to find that solution. So I think you imagine yourself in those case studies as an administrator, being in that position. Resources are limited, people are dependent on you, you have to be a leader, and then you propose a solution. And just उसके लिए I think you just imagine इधर भी if something happens there, what is, if you are the administrator, what is going to be your first step? Now you are a leader, so you have to ensure that everyone is calm first of all. You have to make sure everyone stands in a queue, और धीरे धीरे उसको evacuate करोगे. If there's chaos, then everything is going to be disrupted and you're going to lose more lives. Suppose यहाँ पे इस building में अभी कुछ हो जाता है, then what are you going to do? ठीक है, it's upon you. How are you going to manage it? So in that case, you think of yourself how you have to lead people, and you have to give those qualities also, that you can remain calm in crisis, you can think, you can be patient, you can think rationally, and you always will try to keep everyone along with you. ऐसा नहीं है कि you will sacrifice yourself, but you will try to find out a solution for that. So that is what I think will give a good answers. There's no perfect answer again. But again, those qualities I think should be reflected in your answers, and just try to put yourself in that position. And उसके लिए थोड़ा सा experience also helps कि जितना थोड़ा ज़्यादा लोगों से बात करोगे, आसपास देखोगे, keep your eyes ears open, जैसे newspaper में कभी पढ़ोगे. I think इसके लिए books can also help. जैसे कोई bureaucrats, जैसे civil servants book लिखते हैं, they also go through different situation. They give their experiences of life, how they solve through that experience. I think that can help you a lot. वो case studies में help कर सकते हैं. कभी अभी preparation के बीच में अगर कभी time मिलता है, then you can refer to well-known books of bureaucrats. So I think उसके basis पे you can have that vision at least कि हाँ ऐसे लोग काम करते हैं जब ऐसी situation arise होती है. So that can also help. But GS में again I will say कि it is ethics में it takes less time कम लगता है, और उसमें it's more about you. It's not about वो आपको books से knowledge नहीं मिलेगी, किसी भी book से knowledge नहीं मिलेगी. Examples you have to search for around yourself, और minimum 3-4 examples आ गए, it's good enough. Case studies also, it's about you, how you think. You are not going to get it from any book. तो that is important. उसमें कम time लगेगा, but your own thinking is required. बाकी GS में it's important आप एक source बना लीजिए कि previous year question से ये आया था, और इन बुक से हमारी ये चीज़ रेफ़र हो जानी, बस उसके बाद और ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है. यू कीप ऑन रिवाइजिंग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको लिमिटेड टाइम होता है, 20 क्वेश्चन है और टाइम कम है. सो देन यू हैव टू रिमेंबर इट वेरी फास्ट. बहुत जल्दी जल्दी याद आना चाहिए, और वो क्लैरिटी से भी याद आता है. सो रटने के बजाय उसको थोड़ा समझ के करना है. बेसिक जो फैक्ट्स वाला पोर्शन है उसको बार बार रिवाइज करते रहना. कुछ आप फैक्ट्स पढ़ रहे हो, एग्जांपल्स पढ़ रहे हो, उसको, और एग्जांपल्स याद भी बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं. एग्जांपल्स आर वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगेट. सो इन दैट केस ऑल्सो इट हेल्प्स. सिर्फ पॉइंट्स रटने से आई थिंक यू फॉरगेट. सो मेन जो भी आप पढ़ रहे हैं, अभी जो पढ़ रहे हैं, कीप दैट इन फोकस कि उन 3 घंटे में आपको याद क्या रहेगा. जब कुछ इतना ज़्यादा पढ़ लेंगे और उसके बाद कुछ याद ही नहीं रहेगा, देन इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑफ मच यूज. जैसे अभी आप क्लासेस में भी पढ़ते हैं, सो जस्ट हैव दैट क्लैरिटी कि कुछ, जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, एसएचजी का टॉपिक पढ़ा, तो उसको बहुत अच्छे से एक बार ही पढ़ लिया. और आई थिंक ये चीज़ आपको ना याद भी रहने के ज़्यादा चांसेस हैं एग्ज़ाम में. कोई आपको समझाता है तो आपको वो चीज़, रिटेंशन पावर उसकी ज़्यादा रहती है, रादर दैन कि आप एक बुक से पढ़ रहे हैं. उसके बाद आई जस्ट स्ट्रेट अवे ऐसे का है. ऐसे में आई थिंक ऐसे में अगेन
ऐसे भी कोई बुक नहीं सिखाएगी आपको ऐसे कैसे पढ़ना है कैसे लिखना है. यू हैव टू कीप इट इंटरेस्टिंग, बट इसके लिए यू कैन रीड मोर बुक्स. थोड़ा सा अगर टाइम है देन आई विल सजेस्ट, जैसे अगर मेरे लिए होगा, अगर फिर से एग्ज़ाम देना होगा, आई विल रीड फ्यू बुक्स, इंटरेस्टिंग बुक्स, नॉन फिक्शन बुक्स. जैसे मैं कुछ देखूंगी, सर्च करूंगी, और एंड आई विल ट्राई टू सी कि उनकी जैसे इंट्रोडक्शन वो कैसे स्टार्ट करते हैं, हाउ डू दे राइट, what is the form of expression, how do they express themselves, and I think that I will try to copy in my essay writing style also. वो एक चीज़ है that I will see. बाकी I think content again, as everyone says, GS से cover हो जाता है, and you have that thing, but I think the main thing is try to make it more interesting than the other person. उसके लिए यू हैव टू डू योर रिसर्च. जैसे पॉलिटिकल साइंस है, अब तो वैसे भी फिलोसॉफिकल एसेज काफ़ी आना शुरू हो गए हैं. फर्स्ट वाला आई रिमेंबर कि वो द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज़ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स वाला था. सो आई रिमेंबर मैंने पॉलिटिकल साइंस से अपने जो हमने पढ़ा था उसके एग्जाम्पल्स यूज़ करे थे. तो उसमें एक केस स्टडी थी, उसमें एक स्टोरी लाइन थी सॉक्रेट्स वाली, एंड ही गोज़ टू मार्केट प्लेस में, वो बातचीत करता है लोगों से, एंड ही ट्राइज टू फाइंड आउट व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ ट्रुथ. सो दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, इंट्रोस्पेक्शन. सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड इट, बिकॉज आई नो कि ये पॉलिटिकल साइंस वाले लोगों को तो पता होगा पर बाकी लोगों को नहीं पता होगा शायद. सो आई थिंक दैट वे योर ऑप्शनल कैन ऑल्सो हेल्प. यू कैन यूज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम योर ऑप्शनल ऑल्सो. उसको ट्राई रिलेट करना उस चीज़ से, ऐसा नहीं होना चाहिए इट शुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ देयर इन द क्वेश्चन, बट यू कैन यूज़ दैट एडवांटेज टू योर ओन बेनिफिट. बिकॉज उसमें जैसे मुझे आपका कोई और ऑप्शनल होगा, एंथ्रो ऑप्शनल होगा, तो वो मुझे नहीं पता उसकी केस स्टडीज, सो दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम माई आंसर्स. ठीक है, सो दैट यू कैन यूज़ टू योर बेनिफिट, बट अगेन ट्राई टू मेक इट रेलेवेंट टू वॉट इज़ बीइंग आस्क्ड. That should always be there. वो सब I think I am taking it there that your answer should be whatever is being asked. I'm just saying कि वो तो सभी आंसर करेंगे. how to make it more interesting, what should be a value addition. So कोई बुक पढ़ रहे हो तो उसमें see how they're expressing. जैसे ज़्यादातर राइटर्स यही सजेस्ट करते हैं, keep it simple, short, clear, clarity of words, you know, interesting turn of phrases if you're using. That adds more to it. And I think introduction is one of the defining features in an essay. कि because that's the starting point. So the more interesting your introduction is, the better it will be for the reader. At least वो starting में तो grasp कर लेगा उसकी attention reader की. इसके अलावा I think I have covered optional वाला political science की. This time I studied, this was the first time I was writing with political science, और मेरे पास टाइम कम था. I studied it between mains and prelims वाला वही था, और देयर वर स्पेसिफिक नोट्स. मैंने सिर्फ उन्हीं को ही रेफ़र किया था, उसके अलावा मैंने कहीं और से नहीं पढ़ा था. बाकी आई इंश्योर दैट एटलीस्ट एवरी टॉपिक इन सिलेबस आई हैव कवर्ड. अगर स्ट्रेट अवे टॉपिक ही आ गया कहीं सपोज करो क्वेश्चन में, सो आई डोंट वांट कि मैं वही आंसर ना कर पाऊँ, एटलीस्ट वो मैं अच्छे से आंसर कर पाऊँ. और अगेन आई यूज़ टू टेक एग्जाम्पल्स, जैसे मेंस 365 के एग्जाम्पल्स मैं यूज़ कर लेती थी, उसमें भी मैं यूज़ कर लेती थी. So I think it's all interchangeable. You can use that knowledge here also, this knowledge in GS also. So ऐसे पूरी preparation थी. Interview वाला I think it's very early, but interview में again you have to reflect. You should present yourself as a very confident person, very humble, soft spoken always, और उसमें articulation is very important. Whatever you are expressing, you're to the point, you're answering what they're asking, not wavering around. Even if you don't know, that is also fine. But you are answering what they're asking. That is very important. Because that is what, if you imagine a civil servant of India, that is what you want a person to be, you know, a very confident, bold, assertive person who's able to make decisions, who's able to express himself or herself. And that is what I think that should be reflected in your, through your personality also. Then there are some points which I was given to talk about time management revision. Time management, again, I feel discipline is important because there are so many people who are giving the exam, and you know, everyone is giving it the best shot. So I think discipline is important, but have that balance in that discipline. You can take out time for exercise. I, this time myself, always used to, every day I used to exercise for half an hour, and that actually helped
me focus better. That acted as a break also in between the studies, because sometimes I have felt that I myself have felt कि अगर आप पढ़ते रहो starting में it's all fine, but after a point of time you have that fatigue, उसके बाद आप थक जाते हो थोड़ा कि, और वो refreshing आ नहीं जाता, वो refresh चीज़ बहुत monotonous हो जाता है. That is I saw through I can see through my answers also कि बहुत कुछ नई चीज़ नहीं आ पाती है चीज़ों में. So I think it's important to take breaks also in between. Take that break, whatever you like doing, take it for, but come back to it then again. वो discipline बना के रखना, consistency बना के रखना. जैसे if you are studying daily, ensure you are studying daily. It's tough at times. Sometimes you feel कि यार अब नहीं हो पाएगा, but at least 1 hour, 2 hours, you have that consistency. It is tough, but it's again going to reap you fruits. अगर आप काम मेहनत करोगे तो उसका फल most of the time मिलेगा. At least आपकी satisfaction के लिए तो हो जाएगा. Then again, it's in God's hands. It's in destiny, whatever happens. But at least for your own sake, you should give your 100% because everyone else gives their 100%. Then. And one of the things that I always felt was I should improve even a little bit. I should try to improve upon each day, whatever I am studying. And that is my funda in life also, that I should do better than what I was doing the previous day. That a small increment also, ज़्यादा मेहनत नहीं, but थोड़ी सी भी, I should keep on, the more hour that I'm putting, the more pages that I read, it should be growing each day. And again, one of the other thing that was different this time also was कि I believed more in my own comfort level, जिसमें मैं जो मुझे अंदर से जो मेरी instincts थी, जो मुझे कहती थी कि हाँ कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत. Even in sometimes I used to get different comments, but I didn't used to follow it blindly. I used to see कि whether I am comfortable with it or not. I wanted this to be my attempt, not someone XYZ is telling me कि ऐसे लिखो, whatever. अगर गलती होगी तो मेरी गलती होगी, अगर अच्छा होगा तो मेरे ऊपर होगा, not someone else. I didn't want it to go to someone else. I wanted it to be my own, what I wanted it to be like. तो so even हो सकता है कि मेरी पढ़ने का तरीका आप लोगों के पढ़ने के तरीके से फ़र्क हो, but आपको जहाँ पे खुशी मिलती है, whatever you feel comfortable, at the end I want it to be your own process, you know. Enjoy it, because मतलब it's also a phase in life, you know, studying. उसके बाद आगे का next phase आएगा. So whatever time that you time दे रहे हो तो उसको अच्छे से दो, खुशी खुशी दो, and give it to yourself. खासकर यहाँ जैसे दिल्ली जैसे जगह पे, ORN जैसी जगह पे, you will meet a lot of people who will tell you इससे पढ़ो, इससे पढ़ो, इससे पढ़ो. You can take their suggestions undoubtedly. I think people help lot of times, but at the end of the day you think about it. Don't follow it blindly. आपके लिए जो सही लगे, just think this is you who are writing the exam. The result is going to be your own. This whole process is yours. This journey is yours. So don't again outsource it to anyone else. It's a process of self-discovery for yourself also. And keep that faith in yourself rather than just blindly following others' advice. उसको सोचो कि हाँ ये मेरे लिए सूट करेगा, and take it in a positive light. Take this whole thing in a positive light. कि सीखने को अच्छा मिलेगा. Even though it's going to be very hard at times, it's going to be very difficult at times, just see that you are going to grow as a person. And even if मतलब, you're going to be successful as a person in life. And I think maybe you will be, if you, many of you through this whole journey would have learned even more than me. So you would have grown as a person even more than me. So I think at the end of this whole thing, know that as a person, your strength, character to overcome all these, because struggles are going to be in everyone's life. मेरी life में भी आगे बहुत struggle आने वाले हैं, हम सबकी life में आते हैं. But that strength, whatever you learn from these things, I think that helps you a lot and keep going. So अपने ऊपर विश्वास रखना. I think everything comes to an end. Good things comes to an end. Even bad things comes to an end. So just enjoy whatever you are doing. Enjoy the whole process. If that process is good, and I think most of the times the result you're going to get is also good. So that's all from my side. All the best to you. Thank you so much.